Good morning class, my name is Nazia Ashfaq and I'm the course instructor for the course of psychopathology for this semester, and today it's your 15th lecture for this semester, and the topic we're going to cover today is basically eating disorders. So as we previously discussed in all our previous classes, what a disorder is. It's simply when something goes out of order or out of proportion. So in this disorder, as the name suggests, is basically the eating habits or eating patterns of a person which goes out of order or which goes out of the patterns as per the normal patterns or as per the normal eating habits. So this is the crux of the eating disorders, and in today's class we're going to discuss what basically eating disorders are, what are their main features, their symptoms, their types of eating disorders, and what are the causes of basically which might lead some person to develop an eating disorder. Okay, we'll start with the basic description of eating disorders. So eating disorder basically is an illness, is a psychological condition in which a person develops unhealthy eating habits. It could be eating habits could be related to obsession with food, with body weight, or with body shape. And even in severe cases, the person might go through severe health consequences such as bones weakening or nails or skin damaging, some things like that. And eating disorders, before we move on to further details or types of eating disorders, now there could be various symptoms of eating disorders. Now since the name suggests it's something related to eating, कि इसका जो सारा फोकस है वो खाने से रिलेटेड है. अब सिम्टम्स भी खाने से रिलेटेड ही होंगे, इश्यूज भी खाने से रिलेटेड ही होंगे. अब खाने से रिलेटेड क्या क्या तरह के सिम्टम्स या इश्यूज हो सकते हैं. वन कुड बी रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड, जिसमें द पर्सन स्टॉप्स ईटिंग फूड और रिस्ट्रिक्ट्स हिमसेल्फ ऑफ एनी काइंड ऑफ फूड. उसके बाद है फूड बिंजेस. व्हाट एग्जैक्टली फूड बिंजेस आर, दैट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ फूड इज़ कंज्यूम्ड बाय द पर्सन. और उसके बाद है वॉमिटिंग और ओवर एक्सरसाइजिंग, कि जब आप एक्सेसिव अमाउंट में खा लेंगे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज टेकन इनटू द बॉडी. नाउ दैट अमाउंट of food is then thrown out or is flushed out of the body through artificial methods, and one could be vomiting. ये कुछ symptoms या features हो सकते हैं. अब एक चीज़ यहाँ पर something which is important to know, that eating disorders is a disorder which is more frequent in women and girls as compared to men and boys. Now the reason for this is that since the history can be recorded, bodily issues or physical appearance focus has been associated with female gender. किसी भी कल्चर में आप चले जाएं, किसी भी सोसाइटी में आप चले जाएं, it's the females or the women who are subjected to body issues. ठीक है, कि बॉडीली का जो फोकस है वो लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए है. लड़कों या मर्दों के लिए बॉडी जो है वो उस तरह इम्पोर्टेंस नहीं रखती जिस तरह ख़वातीन के लिए रखती है. सो फॉर दिस रीज़न body related eating habits or eating issues are more frequent in women and in girls. So now we're going to discuss some types of eating disorders. Now the first type of eating disorders is basically anorexia, and this is the most common type of eating disorders and most studied type and most frequently prevalent type of eating disorders. तो बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता क्या है. एनोरेक्सिया नर्वोसा में एक इंसान को अपना आप जो है वो अपनी हाइट और अपनी एज के हिसाब से वेट उसको बहुत ज़्यादा लगता है. एक्चुअली उसको होता नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लगता है. और अब बहुत ज़्यादा वेट लगने की वजह से वो ऐसे बिहेवियर्स में इंगेज करता है जिससे उसका वेट जो है वो रिड्यूस होता जाए. अब वो बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं, वो कोई सर्टेन टाइप ऑफ डाइट फॉलो करना हो सकता है, वो सर्टेन टाइप ऑफ फूड को रिस्ट्रिक्ट करना हो सकता है, वो सर्टेन टाइप ऑफ लाइफस्टाइल हो सकता है. एनीथिंग विच लीड्स दैट पर्सन टू वेट लॉस बिकॉज ही थिंक्स ही इज़ ओवर वेट फॉर हिज हाइट एंड एज. अब कुछ कॉमन सिम्टम्स जो एनोरेक्सिया के आप लोगों को नज़र आएंगे वो तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा अंडर वेट होते हैं. ठीक है, अपनी एज और अपनी हाइट के हिसाब से. दूसरा, इनके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग पैटर्न्स होते हैं, यानी बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें इन्होंने खानी है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से खानी है, बहुत स्पेसिफिक टाइम पे खानी है, ये नहीं खाना और वो नहीं खाना. इस तरह का इनमें ईटिंग पैटर्न होता है. शदीद इस चीज़ का इन लोगों को खौफ होता है कि इनका वेट जो है वो बढ़ ना जाए,
होते ही अंडर वेट है, लेकिन फिर भी इनको वेट बढ़ने का खौफ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इस खौफ की वजह से ये इस कोशिश में रहते हैं सारी ज़िंदगी कि ये कैसे दुबले से दुबले जो है वो होते जाएं। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स के साथ होती है कि इनकी बॉडी जो सेल्फ इस्टीम है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, कि फ़िज़िकल सेल्फ इस्टीम जो है फिज़िकल बॉडीली और फिज़िकली अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों से ये कमतर समझते हैं। एंड अनदर इज़ अ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, ठीक है, कि अब इनकी नज़र में इनका जो बॉडी इमेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद हाउ दे लुक एंड हाउ देयर बॉडी इज़। अब यहाँ पे हम कुछ डैमेजेस देखेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से, कि जैसे अभी हमने कहा कि दे वुड रिस्ट्रिक्ट फूड, तो अब डैमेजेस या नुकसानात इनको शदीद किस्म के जो हैं वो किस तरह हो सकते हैं, कि एक तो इनकी बोन्स वीक हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, नेल्स और हेयर जो है वो लॉस हो सकता है, ख़राब हो सकता है, और ज़्यादा हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा सवेयर केसेस में मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो फेल होने के भी चांसेस हैं। Why? Because they are severely depriving themselves of food and food nutrients. उसके बाद coming on to the next second most common type of eating disorders which is known as bulimia nervosa. अब bulimia nervosa जो है वो बेसिकली ये भी बाकी ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरह जो है वो ज़्यादा विमेन में या गर्ल्स में कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेन एंड बॉयज़। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि इसमें जो इसका मेन क्रक्स ये है कि इसमें इंसान जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड जो है वो स्पेसिफिकली खाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ठीक है। अब यहाँ पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड है वो इतनी लार्ज होनी चाहिए कि विच इज़ नॉट इन एनी केस कंसिडर्ड नॉर्मल, ठीक है। आपको कोई एग्जैक्ट अमाउंट ये सब नहीं देता, लेकिन सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि ये अमाउंट जो है वो आपकी नॉर्मल कंजम्पशन से, किसी भी इंसान की मैक्सिमम से मैक्सिमम कंजम्पशन जो है अमाउंट की उससे भी ज़्यादा होगी या होनी चाहिए, तो फिर आप इसको उस कैटेगरी में डिसऑर्डर कैटेगरी में ले सकेंगे, एक अमाउंट। और दूसरा ये है कि मोर फ्रीक्वेंटली, कि हर थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है वो खाई जाए, ठीक है, बार बार। अब इसमें क्या होगा कि एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंटली आपको डिफ्रेंशिएट करके देगी नॉर्मल ओवर ईटिंग से या फिर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से, एक और जो बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि हर दफ़ा बिंज ईटिंग के बाद यानी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट खाने के बाद वो इंसान जो है वो पेनफुली हद तक जो है वो फुल फील करेगा, ठीक है। उससे वो जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो उसको तकलीफ़ देने लग जाएगी, इतना ज़्यादा उसने खा चुका होगा, उसके लिए खाने पे को रोकना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि पॉसिबल ही नहीं रहेगा, ठीक है। और ये इन लोगों में ये होता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में खा रहे होते हैं तो ये वो चीज़ें भी खा जाते हैं जो आमतौर पे लोग नहीं खाएंगे शायद या अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये भी एक कॉमन इंडिकेटर है इफ़ यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल ओवर ईटिंग एंड बिंज ईटिंग इन केस ऑफ बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद होता क्या है कि जब ये बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर ये उस खाने को जो है वो निकालने के लिए कंपनसेटरी बिहेवियर्स यूज़ करते हैं। अब वो जो कंपनसेटरी बिहेवियर्स जो हैं वो क्या हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करेंगे, वॉमिटिंग, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होगी। अब एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? उस खाने का इफ़ेक्ट निकालने के लिए बॉडी से, या ये इस कोशिश में कि किसी तरह वो फूड जो है वो जल्दी जल्दी बॉडी से पास आउट हो जाए किसी तरह। वॉमिटिंग सेल्फ इंड्यूस्ड होगी कि ख़ुद जो है वो अपने आप को वॉमिटिंग तक लेके जाएंगे ताकि वो जो खाना खा चुके हैं वो बाहर निकालें। फास्टिंग में चले जाएंगे कि एक दफ़ा अगर खा लिया बहुत ज़्यादा फिर बहुत लंबा गैप देंगे ये सोच के कि वो जो खाने का इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस हो जाए। इस तरह की चीज़ें, एक्सरसाइज बहुत सवेयर करेंगे, इस हद तक कि अपनी बॉडी को डैमेज कर लेंगे। नाउ व्हाई ऑल दीज कंपनसेटरी बिहेवियर्स आर अकरिंग? just to reduce or eliminate the effect of that large amount of food which they already have consumed. अब एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा में एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है विच यू शुड नो कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो पेशेंट्स हैं वो हमेशा अंडरवेट होते हैं, बुलिमिया नर्वोसा के जो पेशेंट्स होते हैं वो अंडरवेट नहीं होते। उसकी वजह है कंजम्पशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड्स, ठीक है। अब थोड़े से हम बुलिमिया नर्वोसा के कॉमन सिम्टम्स देख लेते हैं कि एक तो इनमें रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग हैं विद अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कि बार बार जो है वो बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे और उस चीज़ पे काबू नहीं पा सकेंगे,
ठीक है। फिर उसको जब खा लेंगे तो वेट गेन को प्रिवेंट करने के लिए कि ये इनको ना हो जाए कि वेट ना गेन कर लें, उस खाने को या उस खाने के इफ़ेक्ट्स को निकालने की कोशिश करेंगे। फिज़िकल सेल्फ इस्टीम इनकी बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। इन लोगों के अंदर भी एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरह फियर ऑफ गेनिंग वेट होगा, इस चीज़ का खौफ कि कहीं मैं वेट गेन ना कर लूँ। अच्छा, अब इसमें भी हमने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ सीरियस कंडीशंस देखने हैं। वो किस तरह के हो सकते हैं, जैसे सोर थ्रोट हो सकता है कि इनके जो है गला वो ख़राब रह सकता है, इनके स्लाइवली ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेल कर सकते हैं कि उनमें स्वेलिंग हो सकती है, टूथ प्रॉब्लम्स इनको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, गट प्रॉब्लम्स इनको हो सकते हैं, हार्मोनल डिफरेंसेस इनको हो सकते हैं, ठीक है। और सवेयर केसेस में तो ये जिन पेशेंट्स को अगर सवेयर केसेस में बिलूमिया नर्वोसा पहुंच जाए तो उस केस में इवन द इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम वगैरह भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बॉडी में इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से अ पर्सन माइट लीड टूवर्ड्स अ हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इज़ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अब बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में बुलिमिया नर्वोसा की तरह बिंज ईटिंग है, यानी शदीद लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड जो है वो फ्रीक्वेंटली खाना तो है, ठीक है, चाहे भूख लगी या नहीं लगी लेकिन खाना है, और अनकम्फर्टेबली फुल भी होना है, पेनफुली हद तक जो है वो फुल की फीलिंग तक जाना है। और बुलिमिया नर्वोसा की तरह इसमें गिल्ट भी है, इसमें डिस्गस्ट भी है, इसमें शेम भी है कि हमने क्यों इतना ज़्यादा खा लिया है। लेकिन सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर और बुलिमिया नर्वोसा में कि बुलिमिया नर्वोसा में ये खाना खाने के बाद कंपनसेटरी बिहेवियर्स करते हैं उस खाने को या खाने के इफेक्ट को निकालने के लिए। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वाले लोग जो हैं वो उस तरह के कंपनसेटरी बिहेवियर्स में इन्वॉल्व नहीं होते, वो कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो कोई वॉमिटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, या वो जो है वो कोई फास्टिंग की तरफ नहीं जाएंगे, या कोई इस तरह के मेथड्स नहीं वो इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ उनका जो डिसऑर्डर है वो बिंज ईटिंग तक ही रहेगा, ठीक है। और ये जो लोग हैं ये ओवरवेट भी हो सकते हैं, ये ओबीज भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें कोई कंपनसेटरी बिहेवियर्स नहीं पाए जा रहे। ओके, यहाँ तक हमने 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर विच इज़ नोन एज र्यूमिनेशन डिसऑर्डर। अब र्यूमिनेशन डिसऑर्डर बेसिकली इसमें होता क्या है कि द पर्सन ही ईट सम फूड, और खाना खाने के बाद वो उस खाने को जो है वो च्यू करता रहता है, एंड ही कीप्स द फूड इनटू हिज माउथ, यानी वो खाना एक दफ़ा खा लेता है, खा के वो वापस जो है वो मुंह में लाया जाता है और उसको फिर चबाया जाता है, ठीक है। ये है बेसिकली र्यूमिनेशन डिसऑर्डर, यानी खाना खाया, उसको चबाया और उसको अंदर ले गए, यानी स्वॉलो कर लिया, निगल लिया। निगल लाने के बाद उस खाने को आर्टिफिशियल मेथड से दोबारा मुंह में लेके आएंगे और उसको रीच्यू करेंगे, दोबारा चबाएंगे और फिर उसको थूक देंगे। दिस इज़ बेसिकली द सिंपल क्रक्स ऑफ र्यूमिनेशन डिसऑर्डर के र्यूमिनेशन डिसऑर्डर में होगा क्या। अच्छा, अब र्यूमिनेशन डिसऑर्डर जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन हो जाती है कि इंसान के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। और एक चीज़ ये कि ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है एज़ कम्पेयर टू एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा। उसके बाद द नेक्स्ट टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इज़ अवॉइडेंट / रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली इस डिसऑर्डर में क्रक्स क्या है कि एक इंसान जो है वो उतनी अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाता जितनी अमाउंट ऑफ फूड उसको अपनी डेली न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। वो खाने को अवॉइड करता है। अब वो खाने को अवॉइड क्यों करता है? खाने के सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि खाना देखने में अच्छा नहीं लग रहा, उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, उसका टेक्सचर अच्छा नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। इन सारी चीज़ों की वजह से वो खाने को जो है वो अवॉइड कर रहा है, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि उसने ये खाना नहीं खाना, और उसके अंदर जो है एक फियर भी चल रहा है कि कहीं मैं वेट ना गेन कर लूँ, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा वेट लॉस की तरफ जो है वो मूव करने लग जाता है। इस डिसऑर्डर की वजह से भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो यहाँ तक हमने बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लिए। नाउ विल हैव अ लुक एट causes of eating disorders. Now one of the causes of eating disorders is genetics, कि it's being transferred from one family to the other generation to the generation, and it's a hereditary problem.
उसके बाद कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो भी ईटिंग डिसऑर्डर के साथ लिंक किए जाते हैं, जिनमें न्यूरोटिसिज्म हो गया, परफेक्शनिज्म हो गया एंड इम्पल्सिविटी। ठीक है, ये 3 बेसिकली ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं कि जिन लोगों में ये 3 ट्रेट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसर्च उन लोगों में ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ और जो पोटेंशियल कॉजेज़ हो सकते हैं, वो एक तो कल्चरल कॉज हो सकता है कि किसी ऐसे कल्चर में वो इंसान रह रहा है जहाँ पे थिननेस या दुबला होना या बॉडी रिलेटेड इश्यूज़ पे जो है वो फोकस बहुत ज़्यादा है, या वहाँ पे मीडिया इस तरह फंक्शन कर रहा है कि जो है वो इट्स ऑल अबाउट लुकिंग द बॉडी इन अ सर्टन वे। ठीक है, तो ये कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक रोल प्ले करता है। Okay class, with this we come to the end of today's lecture. That was end of today's lecture, and just to give you a quick recap, we discussed basically the eating disorders for today's class. We've discussed main features of eating disorders, we've discussed basic types of eating disorders, then we have discussed some causes of eating disorders. That was all for today's class. Meet you in your online class for further discussion and questions. Thank you.